Hello, students. Very good morning to all of you. Dear students, this is the last video for your chapter How They Packed. A very interesting story by Mr. Jerome K. Jerome. This is the story about he and his friend when they were packing, as on the next day they have to depart on a tour. And here how his friend George and Harris are spoiling everything, making destroy many things, and the laziness and lack of confidence level, everything shows here. Here, students, we have read till this point, and they got it off and packed it in the teapot. Now we have to start the line from here. Montmorency. At first, I want to clear you about this character named Montmorency. It was a dog, a very mischievous dog, and it was a type of dog which also make trouble for the people who lives with this dog. Means it making mischief was its habit and its hobby. So now you see here the work of this dog Montmorency. Montmorency was in it all. Of course, now Montmorency the dog also entered in this story. Montmorency's ambition in life is to get in the way and be scolded. This dog Montmorency's ambition in life was only to make trouble to anyone, to make problem in the way of the people, and it also be scolded. If he can scum in anywhere where he particularly is not wanted, and be a perfect nuisance. Here the narrator says that this character Montmorency, regal anywhere, it start regal anywhere, and he wanted to the particular thing. He wanted to that particular thing that will create nuisance, hurdle, obstructions for a people, for the person. मीन्स उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं वे को हमेशा वो चुनता था जहाँ से किसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो, न्यूसेंस क्रिएट हो, बाधा क्रिएट हो. एक चाक रख दियो उधर वाले में. And make people mad and have things thrown in at his head. Means he always make disturb to the people, try to make them mad, and also destroy, spread, scatter the things at his head. Then he feels his day has not been wasted. And when he did all these tasks, after that he thought that his day is now perfect, his day is not wasted.
मीन्स ये सब करने के बाद ही उसको लगता था कि उसका दिन खराब नहीं हुआ। अगर ये नुकसान नहीं करता था, सामान लोगों को परेशान नहीं कर लेता था, तो ऐसा लगता था कि मोंटमोरेंसी को कि उसका दिन आज खराब हो गया। मीन्स जब तक किसी को परेशान न कर ले, नुकसान न कर ले, तब तक वो अपने दिन को खराब समझता था। To get somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour in his highest aim and object, and when he was succeeded in accomplishing this, his conceit becomes quite unbearable. Montmorency. It was the activity of Montmorency to stumble over him, to make anyone, to make somebody upset, to make somebody stumble and curse him steadily for an hour in his highest aim. उसका एक सबसे बड़ा एम था किसी को घंटों तक परेशान करना, किसी को लड़खड़ा देना, किसी को नुकसान पहुंचा देना। घंटों तक ये इसका प्रोसेस था। और जब ये सब करने में सफल हो जाता था, ये सब एकम्प्लिश कर लेता था, कंप्लीट कर लेता था, तो हिज कॉन्सेप्ट बिकम्स क्वाइट अनबियरेबल। तो ऐसा लगता था कि वो अपने आप पे प्राउड फील करता था, काफ़ी अपने आप को प्राउड फील करता था कि आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क, टुडे माई डे हैज़ नॉट बीन वेस्टेड। He came and sat down on things just when they were to be packed. Now, here in this story, Montmorency the dog came and sat down on the thing. Wherever they were packing, जहाँ वो लोग पैकिंग कर रहे थे, वहाँ वो आया और आकर के सामान के ऊपर बैठ गया, जहाँ वो लोग सामान को पैक कर रहे थे। And he labored under the fixed wheel. और फिर वो श्योर था कि whenever Harris or Judge reached out their hand for anything, it was his cold, damp nose that they wanted. तो उसको था कि अगर ये लोग उसके तक आएंगे, उसको भगाने के लिए आएंगे, उसकी तरफ हैंड अपना बढ़ाएंगे, तो तुरंत क्या करेगा, his cold, damp nose that they wanted. वो तुरंत अपनी जो नोज है उस चीज़ में डाल देगा जिस चीज़ को वे चाहते थे, अर्थात उस चीज़ को, खाने पीने वाली चीज़ अपना मुँह डाल देगा। He put his leg into the jam. और इसलिए सबसे पहला गलत काम वो क्या किया, जो जैम था उस जैम में अपना पैर डाल दिया, उसी जैम में अपना पैरों डाल दिया। एंड प्लेड विद द टी स्पून्स, और जो भी टी स्पून्स वगैरह सब फैले थे वहाँ पे, उनके साथ वो खेलना शुरू कर दिया, को यहाँ से वहाँ फेंकना दौड़ाना वो शुरू कर दिया। He put his leg into the jam. He put his leg into the jam. और फिर अपने पैर को भी जैम में वो डाल दिया। एंड प्लेड विद टी स्पून्स एंड ही प्रिटेंडेड दैट द लेमन्स वर रेड। और फिर वो प्रिटेंड करने लगा, अभिनय करने लगा कि जैसे कि जो लेमन्स थे वो रेड थे, अर्थात लेमन्स को रेड समझ करके उनको चेंज करना शुरू कर दिया। क्लास 6 का एक एंड गॉट इनटू द हैम्पर एंड किल्ड 3 ऑफ देम। और फिर हैम्पर में घुस करके उनमें से 3 को खराब कर दिया, जैसे कि रेड समझ करके उनमें हैम्पर में जा कर के और 3 लेमन्स को खराब वो कर दिया। हैरिस सेड आई इनकरेज्ड हिम। हैरिस कहता है कि आई इनकरेज्ड हिम, आई डिडंट इनकरेज हिम, मैं उसको इनकरेज किया। हैरिस तो पहले बोला, फिर कहता है डिडंट इनकरेज हिम, मैंने उसे इनकरेज नहीं किया। अ डॉग लाइक दैट डजंट वांट एनी इनकरेजमेंट। और बोलता है कि इस तरह के डॉग, इतना मिस्चीवियस डॉग को किसी इनकरेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। इट्स द नेचुरल ओरिजिनल सिन
इट्स द नेचुरल ओरिजिनल सिन। ये जो होते हैं इनके अंदर तो नेचुरल क्यूरियोसिटी होती है, इनके अंदर नेचुरल उत्सुकताएं होती हैं चीज़ों को नुकसान करने के लिए। दैट इज़ बॉर्न इन हिम, और ऐसे पैदाइशी ही होते हैं दैट मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट, जो इस तरह की चीज़ों को करते रहते हैं, ये सब नुकसान करते रहते हैं। The packing was done at 12:50 and Harry sat on the big hamper and said he hoped nothing would be found broken. इस तरह से पैकिंग जो था 12:50 पे फाइनली डन हो गया। अब हैरिस जो है उस बड़े हैम्पर पे बैठ गए एंड सेड, और कहा कि हॉप नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन, और कहा कि अब मैं उम्मीद करता हूँ अब कुछ नहीं टूटेगा, अब कुछ नहीं टूटे फूटेगा, और करके वो आराम से बैठ गया। जॉर्ज सेड दैट इफ एनीथिंग वाज ब्रोकन इट वाज ब्रोकन एंड दिस थॉट सीम टू कम्फर्ट मी। और फिर हैरिस भी आकर बोला कि कोई भी चीज़ अगर ब्रोक हुआ है, टूटा हुआ है, तो दिस थॉट सीम टू कम्फर्ट मी, इट वाज ब्रोकन। जो एनीथिंग वाज ब्रोकन इट वाज ब्रोकन, जो टूटा था वही टूटा है। बोला जो टूटा था, एनीथिंग वाज ब्रोकन इट वाज ब्रोकन, जो चीज़ पहले से टूटा था, कमज़ोर था, वही टूटा है। और ये सोच करके उसको थोड़ा सा कंफर्ट मिला, मीन्स खुद को तसल्ली देने का काम कर रहा है कि अच्छी चीज़ें एक भी नहीं टूटी हैं, जो चीज़ें थोड़ा सा डैमेज थी वही चीज़ें ही टूटी हैं। He also said he was ready for bed, और वो क्या कहता है कि अब वो रेडी फॉर बेड है, बिस्तर पे जाने के लिए, सोने के लिए वो तैयार है। वी वर ऑल रेडी फॉर बेड, और बोलता है हम सब लोग अब सोने के लिए अब तैयार हैं। हैरिस वाज टू स्लीप विद अस दैट नाइट एंड वी वेंट अप स्टेयर्स। और फिर वो बोलते हैं कि वी वर ऑल रेडी फॉर बेड, हम अब सब लोग सोने के लिए तैयार हैं। हैरिस वाज टू स्लीप विद अस, हैरिस को हमारे साथ सोना है, वाज टू स्लीप विद अस, उसको हमारे साथ सोना है दैट नाइट, उस रात के लिए। एंड वी वेंट अप स्टेयर्स, और फिर हम ऊपर सीढ़ियों पे चले गए, सोने के लिए सब लोग चले गए। देयरफॉर फाइनली they have completed their packing, and now after completing the packing, now these three friends finally went upstairs to sleep that night, and therefore this chapter has also completed. Okay, have a nice day everyone, goodbye.